جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے فوراً بیٹھ جائے، کسی اور کو کہے بغیر کہ بیٹھ جائے، خود بیٹھ جائے۔ پیچھے تک کوئی بندہ کھڑا نہ رہے۔ اب وہ خود سوچ لے جو کھڑا ہے بندہ بھی ہے یا نہیں ہے، سوائے سیکورٹی والوں کے کوئی بندہ کھڑا نہ رہے۔ جزاک اللہ۔ اب جہاں تک پیچھے تک بیٹھ گئے، اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، اپنا موبائل نکالیں، کسی اور کا نہیں۔ موبائل نکال کر لائٹ جلائیں ایک دفعہ، بیٹھے بیٹھے لیکن کھڑے کوئی نہ ہو، پیچھے والے بھی اسی طرح، اس سے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی اسی طرح، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ آپ کتنی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ جو سب سے پیچھے والے ہیں وہ بھی نکال لیں اگر جیب میں اپنا ہے، نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور کا مت نکالیں۔ سوشل میڈیا، اچھا یہ ہاتھ ہلائیں بھی ساتھ۔ سوشل میڈیا کا کوئی فرد اگر بازوق ہے تو اس منظر کو محفوظ کرے، تاکہ کل دنیا دیکھے کہ نواب شاہ میں تارے پنڈال کے اندر کیسے آ گئے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ گرامی قدر سامعین کرام،
معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان کانفرنس جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، آپ کے شہر نواب شاہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں اس کانفرنس کے خوبصورت اہتمام، انتظام اور انعقاد پر ضلع کے صدر قاری اکرم صاحب، ہمارے محترم جناب حنیف عثمانی صاحب اور ہمارے محترم عزت مآب حقانی صاحب، بھائی عامر صاحب، بھائی ناصر صاحب، یونٹ کے ذمہ داران، سٹی کے ذمہ داران کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی محنت، کوشش اور کاوش پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنے دین، کاز، مشن کے نظریے اور اس کے پرچار کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام ورکر اور کارکنان جو کئی دنوں سے مسلسل اشتہار لگانے میں، دعوتیں دینے میں، ماحول بنانے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پٹاخیاں بجتی رہیں گی، آپ کا جو دھیان ہے وہ میری طرف ہی رہے، وہاں صرف پٹاخیاں ہیں، یہاں تو طوفان ہے۔ اس لیے زیادہ آپ کو الجھن کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ یہیں رکھیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، دریا آنے سے پہلے شلوار بندہ اتار دے۔ اگر کوئی رسم ادا بھی کرنی ہے تو 12 تو بجے ہی نہیں، ابھی 12 بجنے کا تو انتظار کر لیں، لیکن میرے خیال سے میرے تقریر سے ہی بعض لوگوں کی 12 بج گئے۔ ابھی خطبہ ہی شروع ہوا کہ گھنٹہ آگے چلے گئے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے چونکہ الجھنا نہیں ہے کسی سے بھی، ہم بڑے مستقل مزاج لوگ ہیں، ہم بڑے اعتدال پسند لوگ ہیں، ہم بڑے پرامن اور پرعزم لوگ ہیں۔ ہم یہ خواہ مخواہ کی ان چیزوں میں نہ الجھتے ہیں، نہ الجھنا مناسب سمجھتے ہیں، نہ ہمارا یہ کام ہے۔ ہمارا کام عالمی کام ہے، ہماری سوچ عالمی سوچ ہے، ہمارا نظریہ عالمی نظریہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی اس عالمی سوچ اور نظریے کے مطابق قدم آگے بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے تھے، بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، اور یہ ہمارا عنوان ہی نہیں، ایمان ہے۔ ہم نے یہ عنوان اپنے اشتہار پر لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا عنوان نہیں، ہمارے دل میں لکھا ہوا ایمان ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ختم نبوت کے بغیر اپنے ایمان کو کامل ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ چھپانے کا نہیں، بتانے کا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ چھپانے کا نہیں، اور میں بڑی واضح، کھلی، صاف ستھری سی بات بتانے لگا ہوں، ہم چھپانے والے ہیں بھی نہیں، بتانے والے ہیں۔ نہ ہمارا مذہب چھپا ہوا ہے، نہ ہماری بات چھپی ہوئی ہے، نہ ہمارا کاز چھپا ہوا ہے،
ना हमारा ईमान छुपा हुआ है, ना हमारा कुरान छुपा हुआ है। हमारा अकीदा है, हम हर चीज खुली खुली बताते हैं, खोल खोल कर बताते हैं। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत हमारा ईमान है। और हर चीज छोड़ी जा सकती है मगर ईमान छोड़ा जा सकता? ऊंची और ऊंची, ईमान छोड़ा जा सकता? ये हमारा ईमानी मसला है और दुनिया को समझना चाहिए। ये हमारा ईमानी मसला होने की वजह से इस पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता? इसीलिए मेरे दोस्तों ने इश्तिहार को उन्वान तहफ्फुज़ खत्म नबूवत बनाया और पहला हिस्सा उसका तहफ्फुज़ खत्म नबूवत लिखा और साथ ही अगला इशारा दे दिया, साथ ही अगला इशारा दे दिया। किसी ने कहा वो क्या इशारा है? मैंने कहा सामने लिखा है खलीफा बिला फस्ल। खत्म नबूवत का पहला मुहाफिज, खत्म नबूवत का पहला सिपाही, खत्म नबूवत का पहला वर्कर, खत्म नबूवत का पहला कारकुन, खत्म नबूवत के महाज पे जाने वाला पहला फर्द, खत्म नबूवत का पहला देने वाला पहला शख्स अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बाद खत्म नबूवत का पहरा देने के लिए जो सबसे पहला लश्कर भेजा, इस लश्कर भेजने वाले का नाम अबू बकर है। दुनिया को बता दिया और क़यामत तक जितने लोग खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे, खत्म नबूवत के लिए काम करेंगे, खत्म नबूवत के लिए मेहनत करेंगे, इसका सवाब बराह रास्त अबू बकर को मिलेगा। क्यों? सबसे पहले खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले को अबू बकर कहते हैं। और ये बात भी ज़हनों में रहे, समझाने के लिए कह रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में कई जंगें लड़ी गई, कुफ्र के साथ बराह रास्त मुकाबला हुआ, मुसलमान मैदानों में गए, अपने हाथ को पेश किया। बदर से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक, रहलत तक, पर्दा फरमाने तक जितनी जंगें, उन सब में शहीद होने वालों की तादाद कम है। सब जंगों में शहीद होने वालों की तादाद कम है। एक जंग जो खत्म नबूवत की लड़ी गई है, उसमें शहीद होने वाले की तादाद सबसे ज्यादा है। क्या पैगाम है? क्या पैगाम है? सब जंगें एक तरफ, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला आया तो परवाने, दीवाने, मस्ताने मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ मैदान अमल में निकले। अबू बकर ने काफिला भेजा, मैदान में खड़े हो गए, 1200 से ज़ायद लोग शहीद हो गए, जानों का नजराना दिया। मगर जिसने कहा था मैं अमी हूं, मेरे पास नबूवत है, उसके मुकाबले में खड़े होकर कहा हुजूर के बाद किसी की नबूवत तस्लीम नहीं करते। 1200 लोगों की जानों के नजराने देने पड़े, दे देंगे। गर्दनें कटवानी पड़ी, कटवा देंगे। बच्चे यतीम करने पड़े, करवा देंगे। जुल्म जबर सहना पड़ा, सह लेंगे। घरों को छोड़ना पड़ा, छोड़ देंगे। मगर रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, खत्म नबूवत पर आज नहीं आने देंगे। खत्म नबूवत के महाज पर सहाबा का पहरा, कुर्बानी, खून, जज्बा, मैदान में निकलना, तलवार उठाना, तीर चलाना, नेशा लगाना, ज़र्रा पहनना, मैदान में आना, खून देना बताते हैं। ये कोई आम मसला नहीं, अहम मसला है, ईमान का मसला है। सब कुछ कुर्बान हो सकता है मगर खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता।
सियासतदानों, मजहबी लोगों, ये उन्वान जज्बाती नहीं है। इस उन्वान को जज्बाती उन्वान मत समझना। ये उन्वान ईमानी है, ईमानी है, जज्बाती नहीं है, ये वक्ती नहीं है। एक वक्त में 1200, 12,000, 10,000 भी कुर्बानी दे चुके हैं, मगर उन्वान पे पैदा था, है, रहेगा। मैं अपने दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने खूबसूरत उन्वान का इंतखाब किया। और कैसे ना हो, हमारे यहाँ कोई उस्मानी है, कोई हक्कानी है, कोई रहमानी है, कोई रब्बानी है, सभी दीवानी है। अभी मैंने सिद्दीकी की बात नहीं की, अभी मैंने फारूकी की बात नहीं की। यहाँ तो ये भी हैं, यहाँ तो अलवी भी हैं, यहाँ हुसैनी है, यहाँ हसनी है, यहाँ सुफियानी है, बाकी उधर देखो तो पानी पानी है, और उनके घरों में जाकर देखो तो वीरानी वीरानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। कुरान करीम ने हुजूर की खत्म नबूवत की बात की, क्या फरमाया? फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया हुजूर के अलावा जिसने कहा हो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया में कोई नबी और ऐसा नहीं आया जिसकी किताब में कहा ये आखिरी नबी है, ये एजाज सिर्फ हमारे पैगंबर को हासिल है। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने कहा बात पूरी हो गई। ये सिर्फ हुजूर थे जिनके बारे में कुरान में अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, बात पूरी हो गई। नबियों के कई कई जमाना वक्त गुजारा, 100 साल, 500 साल, 900 साल, मगर जाते हुए ये नहीं कहा बात पूरी हो गई। एक ही जात ऐसी थी, जाने से पहले ऐलान हो गया दीन मुकम्मल हो गया, पसंद कर लिया गया, मुंतखब कर लिया गया। फरमाया वल्लदीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले नाजिल हुआ। बाद एक नहीं कहा, क्यों? बाद में कोई आएगा नहीं। जो नाजिल होना तो हो गया, अब मोमिन वही है। युमिनूना, मोमिन वही है, मोमिन वही है, ईमान वाला वही है। कुरान बताता है ईमान वाला वही है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, जो तौरात को माने, ज़बूर को माने, इंजील को माने और फिर कुरान को माने, और कुरान के बाद फिर किसी वही को ना माने, न किसी नबी को माने, न किसी किताब को माने। मोमिन वही है जो कुछ उतरना था हुजूर पर उतर चुका। आपके बाद कोई चीज आसमान से अहकाम शरीयत के मुताबिक नहीं उतरेगी। क्यों? कोई नबी नहीं होगा तो पैगाम नहीं आएगा। पैगाम तब आता है जब नबी होता है। अब कोई अगर कहे कि अब भी पैगाम आता है तो कुरान के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन मसला कोई नहीं, मोमिन जो नहीं है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, मोमिन नहीं है। यहाँ तो जाफरी भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाफरी नहीं है। ईमान वाले पर जो आना था आ गया, अब कुछ और नहीं आएगा। अल्लाह के कुरान ने
नबी हूँ। बात खत्म होगी या नहीं होगी? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सिर्फ कहते रहे ना खातमुन नबिय्यीन, बात काफी थी। फरमाया ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी ऊंची और ऊंची और ऊंची, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बात यही खत्म नहीं, फरमाया अगर नबी होता, अगर नबी होता, लहू काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो नबी उमर होता। मेरे पास वक्त कम है, आपके पास भी वक्त कम है, उस्मानी के पास भी वक्त कम है। कि दिल की धड़कनें कह रही हैं कि वक्त कम है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए अगर आप वक्त ले लेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसलिए आज मुझे दे दो तो नारा कोई ना लगे, और जब मैं आऊंगा ना अपनी मौज में फिर सभी लगाएंगे। अपनी बात तो करेंगे, इसलिए कि 2025 का आखिरी दिन है और हम दुनिया को बताएंगे कि 25 के आखिर में भी सहाबा सहाबा, 26 के शुरू में भी सहाबा सहाबा। बैठ के बैठ के बैठ। पुराने साल का इख्तिताम भी इससे है, नए साल का आगाज भी इससे है। तेरे पटाखे बंद हो जाएंगे, मेरा तूफान जारी रहेगा। तेरी बात घंटों मिनटों में है, मेरी बात जिंदगियों में है। ये साल की बात नहीं, सालों की बात है। ये सालों के नहीं, साल आए सालों की बात है। ये तौरात में, ये ज़बूर में, ये इंजील में, ये कुरान में, ये सहीफों में, ये फरकों में, ये जमानों में, ये दौरों में, ये पहाड़ों में, ये दरियाओं में, ये समुद्रों में, ये हवाओं में, ये फिजाओं में, जबानों में, तरानों में, अफसानों में, कहानियों में, दस्तूरों में, मंशूरों में, हदीस में, फिक़ह में, उसूल में, ज़ाब्ते में, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, शबाब में, उरूज में, इल्म में, अमल में, तक़वे में, तारत में, बुज़ुर्गी में, जिंदगी में, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, उजाले में, सख्ती में, नरमी में, गर्मी में, अतकरी में, बेड़ी में, तख्तेदार पे आवाज थी है लगेगी साहबा 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 साहबा। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखे। ये जो आगे वाले हैं ना, आगे वाले, ये सारा माहौल अच्छा बनाते बनाते खराब कर देते हैं। अगर आप सब बैठे बैठे ना, बैठे बैठे सिर्फ मुक्का बनाएं और साहबा साहबा कहें तो सब नजर आएंगे। अब आगे के 50 नजर आते हैं, पीछे के हजारों नजर नहीं आते। तो यूं ना करें, उठे ना, जज्बे का इजहार करें, हाथ उठाएं, मुक्का बनाएं, फिर बताएं। अभी मैं उस तरफ आऊंगा, मैंने सिर्फ झलक दिखाई है। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर आखिरी नबी है, ईमान का मसला है। कुरान ने कहा आखिरी नबी, हुजूर ने कहा मैं आखिरी नबी, और फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता है, नहीं होता, मेरे बाद नबी होता तो कौन होता? कौन होता? कौन होता? मेरे बाद नबी होता तो कौन होता? किसने फरमाया? हुजूर ने फरमाया, ताजदारे हरम ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, लहू
काना बादी नबीयुन, मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, वो उमर होता, उमर होता, उमर होता। उमर नबी नहीं तो नबी कोई आएगा भी नहीं। अगली बात में अगले मरहले में दाखिल हो रहा हूं। खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए हर लम्हे तैयार रहोगे? खत्म नबूवत की पहली जंग सहाबा ने लड़ी। जो 1200 शहीद हुए वो कौन थे? कौन थे? उस अकीदे पर जोरदार थप्पड़ नहीं लगा जिसने कहा कि हुजूर के बाद सिर्फ 3 रह गए थे। उससे पूछता हूं ये जो 1200 थे ये कौन थे? ये कौन थे? ये कलमा को नहीं थे, ये नमाजी नहीं थे, गैरतमंद नहीं थे, दीनदार नहीं थे, मोमिन नहीं थे, इस्लाम वाले नहीं थे, शरीयत वाले नहीं थे, निजाम वाले नहीं थे, निफास वाले नहीं थे, हुजूर वाले नहीं थे, कुरान वाले नहीं थे, सुन्नत वाले नहीं थे, हिदायत वाले नहीं थे, क्या रोशनी वाले नहीं थे? हाँ यही थे। तभी तो खत्म नबूवत के लिए मैदान में निकले थे, घर में नहीं बैठे थे। अगर 3 रह गए थे तो 1200 थे। पता चला ये 1200 मोमिन थे जिन्होंने खत्म नबूवत पर पहरा दिया। और यही इस तबके को तकलीफ है, यही इस तबके को तकलीफ है। ये खत्म नबूवत के मुनकर हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। ये इस्लाम को मिटाना चाहते थे, कोशिश करके मिटाना चाहते थे, और उसे मिटाने के लिए गवाहों को मिटाना चाहते थे। मैं नबी के गवाह तुम पे कुर्बान जाऊं, 1000 बार तुम ऐसे डट के खड़े हो गए, ऐसा नक्श छोड़ दिया, ऐसी मार सबक की, आज तक बातिल तड़पता जा रहा है और तुम्हारा सितारा चमकता जा रहा है। आज तक दुश्मन तड़पता जा रहा है, सहाबा का सिक्का चमकता जा रहा है। जूं जूं इधर तकलीफ बढ़ रही है, ऐसे ऐसे उनकी मिदहत बढ़ रही है। इतनी मिदत बढ़ी कि 25 की आगाज में भी जमा थे, 25 के इख्तिताम पे भी जमा है। बात 85 की नहीं है, बात 85 की नहीं है, 85 की शुरू हुई है तो 25 तक आ गई है। और 25 की आखिरी बात बता रही है, रुकी नहीं है, रुकी नहीं है। आखिरी लम्हात में भी ये खड़े होकर कह रहे हैं, काफिला ना रुका है ना थमा है, बड़ा था बड़ा है बढ़ता रहेगा। जज्बा इसी को कहते हैं, जज्बा इसी को कहते हैं। रुक कभी ना रुक सके, कहो सुभान अल्लाह। इसी को जज्बा कहते हैं, रुक कभी। ये रुक के नहीं रोक सके, रोके से कैसे रुकेंगे? ये रुक के ना रुक सके, रोके से कैसे रुकेंगे? ये रुकने वाले हैं ही नहीं, ये चलते चले जाएंगे। क्यों? सहाबा रुके थे? मक्का में रह गए थे, मदीना में रह गए थे, हुजूर के करीब रह गए थे, सिर्फ वहीं पर रहे थे। क्या बदर में नहीं आए थे? ओहद में नहीं आए थे? खैबर में नहीं आए थे? क्या तबूक में नहीं आए थे? यरमूक में नहीं आए थे? क्या गज़वात में नहीं आए थे? क्या तलवार नहीं उठाई थी? क्या तीर नहीं उठाया था? क्या नेज़ा नहीं उठाया था? क्या मैदानों में नहीं निकले थे? क्या दुनिया में नहीं आए थे? क्या रूम को फतह नहीं किया था? फारस को फतह नहीं किया था? क्या कंधार तक नहीं आए थे? काबुल तक नहीं आए थे? पिशावर तक नहीं आए थे? सक्खर तक नहीं आए थे? रोड़ी तक नहीं आए थे? जनाब दुनिया के कोने कोने तक नहीं गए थे? कहते क्यों नहीं? गए थे या नहीं गए थे? उन्हें रूम रोक सका? उन्हें फारस रोक सका? उन्हें कब्रस रोक सका? उन्हें जालिम रोक सका? उन्हें हाकिम रोक सका? उन्हें ताकत रोक सकी? उन्हें कुव्वत रोक सकी? उन्हें हुकूमत रोक सकी? उन्हें रुकावटें रोक सकी? उन्हें ताकतें रोक सकी? उन्हें गैर रोक सके? उन्हें बातिल रोक सका? कोई रोक नहीं सका। बल्कि वो ऐसे चढ़े कि कुफर के सीने पर चढ़कर पांव से उनकी शहरत को दबा कर रख दिया। फिर दुनिया को बताया, दुनिया में इस्लाम का पर्चा लहरा कर परचम बताया।
नबूवत के पहले मुहाफिज कौन? कौन? नबी से दीन लेने वाले कौन? हुजूर से दीन समझने वाले कौन? नबूवत की बात सुनने वाले कौन? नबूवत के शागिर्द कौन? नबूवत के साथी कौन? नबी के रफीक कौन? नबी के साथ चलने वाले कौन? दीन लेने वाले कौन? इल्म लेने वाले कौन? किताब लेने वाले कौन? कुरान लेने वाले कौन? अहकामात लेने वाले कौन? शरीयत की बात लेने वाले कौन? बताओ कौन? गूंज नहीं आई, गूंज नहीं आई। जज़ाकल्लाह। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि नबी की जरूरत ही खत्म हो गई। पहले नबी क्यों आते थे? जरूरत थी। अब नबी क्यों नहीं आते? जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी आता तब है जब नबी की तालीमात मिट जाती है। मेरे महबूब की तालीम मिटी ही नहीं, सिर्फ मिटी नहीं बल्कि फैली। भाई बाकी नबियों की जाने के बाद उनकी शरीयत सिमट गई, हुजूर के जाने के बाद नबी की शरीयत फैल गई। कितनी फैली? कितनी फैली? 9 लाख से 11 लाख, 11 लाख से 22 लाख, 22 लाख से 44 लाख, 44 लाख से 64 लाख। आधी दुनिया क्रॉस हो गई, आधी दुनिया क्रॉस हो गई। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। आपको दुनिया में इसलिए भेजा गया आप पूरी दुनिया पर दीन को गालिब फरमाएं। हुजूर चले गए मगर दीन गालिब हुआ। पूछता हूं तुमसे, बताओ ये गालिब करने वाले कौन थे? लोगों सुनो, हमें जज्बाती न कहो। मैंने मील बताए, मैंने मील बताए, रास्ता बताया, जगह बताइए, मकाम बताया, परचम बताया, वसत बताइए। और अगर पूछते हो तो अगली बात कहने लगा मदीना कहाँ है, मक्का कहाँ है और नवाब शाह कहाँ है? पूछता हूं क्या नवाब शाह के मकानों की अलमारियों में कुरान है या नहीं है? नवाब शाह के बस्ती में मस्जिदों में अजान है या नहीं है? मिंबर है या नहीं है? मेहराब है या नहीं है? तिलावत है या नहीं है? बताओ या रोजा है या नहीं है? हाजी है या नहीं है? नमाजी है या नहीं है? गाजी है या नहीं है? हक के अलमदार है या नहीं है? सुन्नत मौजूद है या नहीं है? शरीयत मौजूद है या नहीं है? मुअज्जिन कारी हाफिज है या नहीं है? कहते हैं तुम्हारे घर में कुरान है, घर में हदीस है, सुन्नत का तरीका मौजूद है, गुस्ल का तरीका मौजूद है, नमाज का तरीका मौजूद है, इबादत का तरीका मौजूद है या नहीं है? पूछता हूं बताने वाले कौन है? पूछी। इसलिए जरूरत नहीं है किसी ने कहा मौलाना साहब क्या हुआ, उस्मानी साहब बस करने लगा, पंजाब बस करने लगा। खड़ाका है, खड़ाका तू थोड़ी करके आया। नहीं जी, नहीं जी, जो गया उसको पता है। नहीं जी, नहीं जी। हाँ 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 हाँ, ये कौन सी शक की बात है? तो नजर आ रहा है। तवज्जो। बाकी नबियों के जाने के बाद उनकी शरीयत सिमट गई, हुजूर के जाने के बाद इनकी शरीयत फैल गई। किसी ने कहा मौलाना साहब वजह तो बताओ, तवज्जो, वजह तो बताओ। क्या करो? वजह तो बताओ। मैंने कहा फिर मुझसे सुनो वजह क्या है? इसलिए कि उन नबियों के पास कोई अबू बकर नहीं था, उनके पास
पास कोई उमर नहीं था, कोई उस्मान नहीं था, तलहा नहीं था, जुबैर नहीं था, बिलाल नहीं था, खब्बाब नहीं था, खुबैब नहीं था, हसन नहीं था, हुसैन नहीं था, मुआविया नहीं था, सुफियान नहीं था, उनके पास खदीजा नहीं थी, अफशा नहीं थी, रुकैया नहीं थी, ज़ैनब नहीं थी, फातिमा नहीं थी, उनके पास ये नहीं थे, दीन फैल नहीं सका, इनके पास ये थे, दीन मिट नहीं सका, और क़यामत तक दुश्मन जोर लगाते लगाते खत्म हो जाएगा, दीन मिट नहीं सकेगा। इसलिए पहुंचाने वाले इतने मजबूत थे, कब कौन थे? मैंने कहा टूटा फूटा बना दुनिया को बता। सहाबा 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 ये रजब का महीना है, 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात है। 22 रजब को 22 जुमादी उस्सानी की तरह इंशाअल्लाह मुल्क भर में जुलूस होंगे। कातिब वही अमीर मुआविया जिसने नबी की शरीयत को 22 लाख मुरब्बा मील ज़मीन तक ले आया, उनकी अज़मत को बयान किया जाएगा। जिनके लिए रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर दुआएं की, उनकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, उनकी शान को बयान किया जाएगा। जो फातेह कब्रस बना, उनकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने नबी के हाथ पर बैत की, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसके हाथ पे हसन हुसैन ने बैत की, उनकी शान को बयान किया जाएगा। जो रसूल के हाथ पे कलमा जिसने पढ़ा, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जो शाम का गवर्नर बना, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जो अमीरुल मोमिनीन बना, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने बातिल को दिन में तारे दिखाए, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने सबसे पहले पैरी पेड़ा बनाया, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने अरबों अजम को मिलाया, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसने दुनिया के अंदर अमल की बुनियादें रखी, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जो दुनिया में सियासत का निशान बना, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिसकी साबियत का चर्चा आज भी है, उसकी शान को बयान किया जाएगा। जिस तारे को देख के कुत्ता भौंकता है, उस तारे की बुलंदी को बयान किया जाएगा। जिस मुआविया की अजमत पंजा लड़ाए, हर पंजा लड़ाने वाले का पंजा झुका दे, उस मुआविया की शान को बयान किया जाएगा। करोगे नहीं करोगे? 22 रजब को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की धरती में खूबसूरत जुलूस होंगे, मुल्क की तरह नवाब शाह में भी होगा। हम इस मुल्क को पुरअमन बनाएंगे, मुस्तहकम करेंगे, रोशन करेंगे, फिरका वारियत का खात्मा करेंगे। इस मुल्क को रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान हमारा वतन था, पाकिस्तान हमारा वतन है। हम इसी में रहते थे, हम इसी में रहते थे। हमारी वफा भी इसी से, हमारी वफा भी इसी से, हमारी मोहब्बत इसी से। हम जिस तरह सहाबा के दिफा से बाज नहीं आ सकते, पाकिस्तान के दिफा से भी बाज। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करोगे, मदे साहबा दिफाए साहबा करोगे, हल्के बनाओगे, झूठे बनाओगे। यहाँ इस मजमे में मस्तूरात भी आई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप भी अपने घरों में अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखें, और दो नाम खुसूसियत के साथ, एक उमर और एक मुआविया। ये दोनों नाम खुसूसियत के साथ रखें। हर घर में एक मुआविया होना चाहिए और हर घर में एक उमर होना चाहिए, ताकि दरवाजे से शैतान अंदर आ ही ना सके। और अपनी बच्चियों के नाम साहबियात के नाम पे रखें। सैयदा फातिमा ज़हरा नाम रखें, उम्मे कुलसूम नाम रखें, रुकैया नाम रखें, ज़ैनब नाम रखें, आयशा नाम रखें। मैं ख़वातीन से कहना चाहता हूँ, अपने घरों में अक़ायदे सहाबा की तालीम करें, अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाएं। मैं उनसे कहता हूँ, अपने घरों में दर्स कुरान का माहौल बनाएं, हर घर में सहाबा की सदा लगाएं। अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए सहाबा का तज़किरा करके सहाबा की सदाएं सुनाएं, ताकि दुश्मन अपनी गलत निगाहों से अगर सहाबा पर तबर्रा की कोशिश करे तो जवाब में एक ही सदा है। वो सदा क्या है?
انشاءاللہ آنے والا سال صحابہ کی عظمت کا سال ہوگا، صحابہ کی مدح کا سال ہوگا، انشاءاللہ صحابہ کے غلاموں کا سال ہوگا۔ ہمارا مطالبہ ہے، یہ شہر صدر کا شہر ہے، اس شہر میں صدر رہتا ہے۔ میں نواب شاہ میں صدر کے علاقے میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، ان دونوں ایوانوں نے جو اہم ترین پاکستان کے قانون ساز ادارے ہیں، ان سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ صدر صاحب اس بل کو قانون کا حصہ بناؤ اور تاریخ میں رقم ہو جاؤ، جس طرح بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سائن کر کے اپنے آپ کو تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ زرداری صاحب اپنے آپ کو آخری عمر میں امر کرنے کے لیے تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پر دستخط کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کا سچا حقدار ثابت کرو، تاریخ میں رقم ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ ہمارا مطالبہ رہے گا، میرا مطالبہ ہے 2026 کا سال قانون کا سال ہونا چاہیے اور اس سال میں یہ قانون بننا چاہیے، انشاءاللہ بنے گا۔ تعاون کرو گے، ساتھ دو گے، آگے چلو گے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر